Good morning, students. Our today's topic is controlling data redundancy. By now, you might have become quite familiar with Base. So let us continue our discussion of designing database for our sample application. We have already designed 4 tables. Okay. First, we learn what is data redundancy. Data redundancy is a term used for unnecessary duplication or repetition of data. डेटा का अननेसेसरी रिपीटेशन जब आता है हमारे टेबल में तो उसे डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एक ही डेटा है जो सारे टेबल में रिपीट होता है. वी हैव सीन दैट कस्टमर टेबल हैव फील लाइक सिटी. मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वुड हैव मैनी कस्टमर दैट बिलोंग टू सेम सिटी. Thus, if 100 customers belong to city called Ahmedabad, then for each of this customer, the string Ahmedabad would be repeated. So 100 customer के लिए वो अहमदाबाद सिटी रिपीट होगा. That time, this data occupy more storage and wastage of storage space. For example, to eliminate redundant data from a database, we must take special care to organize data. Store in table. Database designer attempt to eliminate it as far as possible by using technique called data normalization. Data normalization एक टेक्निक है जिससे हम डेटा का रिपीटेशन है उसे अवॉइड कर सकते हैं. नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सजेस्ट decomposition of single data into multiple table, thus creating a parent child relationship. जो सिंगल डेटा है वो मल्टीपल टेबल में जब रिपीट होता है तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से. thus in case of customer table, in our sample database a new table can be created to store information about city. Let us name this table as city. See this is a one table name is a city. We can aware the each area within a city has distinct pin code associated with it. आप सब जानते हैं अलग अलग सिटी के अलग अलग एरिया के पिन कोड भी अलग आते हैं. यू कैन सी दिस अहमदाबाद एरिया है भोपाल लो गार्डन, तो उसका पिन कोड डिफरेंट है. तो आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें सिटी के पिन कोड आते हैं. वी नाउ नीड टू मेक चेंज इन कस्टमर टेबल. वी कैन रिमूव सिटी फील्ड. ओके, सो सी दिस इज अ सिटी टेबल विथ स्टेट एंड कंट्री. कस्टमर टेबल में से आप वो फील्ड रिमूव कर दो. व्हेन द डेटा ऑफ न्यू कस्टमर इंसर्टेड कस्टमर टेबल वी विल यूज द पिन कोड फील्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कस्टमर सिटी एरिया. सिमिलरली द सिटी फील्ड शुड बी रिमूव फ्रॉम सप्लायर टेबल एम्प्लॉय टेबल. दैट मीन्स कस्टमर टेबल में से हम सिटी फील्ड निकाल देंगे और पिन कोड फील्ड लगा देंगे तो वो पिन कोड के हिसाब से हम जान सकते हैं कि वो कौन से एरिया का पर्टिकुलर कस्टमर है. तो वो अहमदाबाद रिपीटेशन चला जाएगा. नाउ इफ यू आर गिवन पिन कोड द इंफॉर्मेशन of location we search from city table, but you can observe that about design city table contains same flow called data redundancy. Same city and state gets repeated multiple time. तो आपको क्या करना है उसको भी निकालना है. डिकम्पोज इनटू मल्टीपल टेबल. सो मल्टीपल टेबल लेकर आप वो डेटा का नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं. सी दिस स्ट्रक्चर. फर्स्ट कंट्री आईडी कंट्री नेम, state ID, state name and country ID, and last is a city, pin code, city area, and here is a which will repeat in this table is a state ID and country ID repeat in the state table. So country ID repeated in a state table and state ID repeated in a city table. Here we assign country ID, state ID and pin code field as primary key of country, state and city table respectively. See this, the table which contain primary key is known as a master table. जो टेबल प्राइमरी की कंटेन करता है उसे मास्टर टेबल बोलते हैं. और प्राइमरी की का फीचर्स क्या है कि उसकी वैल्यू
रिपीट नहीं होगी, यूनिक होगी, उसे प्राइमरी की फील्ड बोलते हैं। सो जो टेबल में प्राइमरी की होगी वो टेबल को मास्टर टेबल कहते हैं। फॉरेन की कैन बी डिफाइंड एज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड whose value are borrowed from another table. When it is combination of more than one table, it is known as a composite foreign key. When master table has composite key, table related with it hold composite foreign key. See these. This is our master table and this primary key field country ID repeat in the state table. So this here this is called foreign key. So this way we can reduce data duplication. कंपोजिट प्राइमरी की किसे बोलते हैं? जो टेबल में 2 बार प्राइमरी की आती है। सिलेक्ट रोज, कंट्रोल की, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की यू कैन मेक अ कंपोजिट प्राइमरी की। नाउ वी लर्न अबाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप विथ टेबल. व्हाट इज रिलेशनशिप? And what is referential integrity? Okay, first of all we learn about types of relationship. There are 3 major type of relationship between any table of database: one to one, one to many, and many to many. There is 3 main type of relationship. First is a one-to-one relationship. As its name suggests, one-to-one relationship indicate that one specific record of particular table has one and only one corresponding record in a other table. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. एक टेबल है जिसमें फील्ड है रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस. ओके, तो 50 स्टूडेंट हो गए तो उसके 1 to 50 रोल नंबर हो गए, उसके नेम हो गए और उसकी सिटी होगी. अनदर टेबल रोल नंबर और मार्क्स है तो उसमें ओनली 2 फील्ड है, रोल नंबर एंड मार्क्स. लिसन, अभी क्या है कि रोल नंबर जो आप मेन टेबल में से डिलीट करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अनदर टेबल है उसमें से भी वो फील्ड चला जाएगा. सो रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अभी कोई स्टूडेंट लेफ्ट होता है तो मेन टेबल में से आप उसका डेटा निकालोगे तो सेम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी टेबल होंगे उसमें से वो डेटा डिलीट हो जाएगा. तो 1-to-1 रिलेशनशिप मीन्स एक टेबल में जो रिकॉर्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे टेबल में एक ही रिकॉर्ड होगा, उसे बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप. डू नॉट गेट सरप्राइज, इट नॉट न्यू टू अस, वेरी कॉमन इन अवर डे टू डे लाइफ. एग्जाम्पल, थिंक ऑफ थिएटर, जस्ट थिंक अबाउट थिएटर. हाउ मैनी पीपल कैन सीट इन चेयर? Naturally 1. Then how many seats can be occupied by one person? Definitely. थिएटर का एग्जाम्पल ले तो एक चेयर है उसमें एक ही पर्सन बैठ सकता है, और आप रिवर्स सोचेंगे तो एक पर्सन के लिए एक ही चेयर काफ़ी है. सो दैट इज कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप. यू कैन थिंक अ रिलेशनशिप बिटवीन योर क्लास एंड क्लास टीचर, और अ लाइब्रेरी और लाइब्रेरी कार्ड इश्यू टू स्टूडेंट. क्लास और क्लास टीचर का क्या है? एक क्लास है, फॉर एग्जांपल 11 है तो उसके ओनली वन क्लास टीचर हो गए. फॉर एग्जांपल आपके क्लास टीचर है नीलम टीचर. सेम थिंग, नीलम टीचर है वो कोई भी एक ही क्लास के क्लास टीचर बन सकते हैं, 2 क्लास 3 क्लास के बन नहीं सकते. तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप. You will definitely agree that any class in your school will have one and only one class teacher. At the same time, any teacher is assigned one and only one class to look after. So, we can say that the class and class teacher is an example of 1-to-1 relationship. There are 2 types.
So these two example of one-to-one relationship. One is a class theater and chair, and one is a class teacher and class. Next, one-to-many relationship. What is one-to-many relationship? The most common type of relationship between table is one-to-many relationship. In this type of relationship, one specific record of particular table may have many corresponding record in another related table of database. One customer can purchase multiple products. Similarly, one city belongs to single state, but one state can have a multiple city. Imagine a class teacher scenario in your school. There can be one and only one class teacher to any class, but any class teacher defined have many students enroll with him. That's why the relationship between class teacher and student is one-to-many. Class and class teacher is one-to-one, but class teacher and student one-to-many. How it is possible? एक क्लास है, क्लास टीचर है, तो उसके कई सारे स्टूडेंट हो गए और कई सारे स्टूडेंट की एक क्लास टीचर हो गए, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है क्लास टीचर एंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अकर इन केस ऑफ सम स्पेसिफिक record which have to be stored more than one in both the table. In our example, okay, we forgot this example. We take a real life example. At organization, we can state then employee may have multiple designation and single designation may belong to multiple employee. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. आप एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं टीचर का और सब्जेक्ट का. तो कई स्कूल में ऐसा होता है कि मैथ्स के कई सारे टीचर होते हैं, तो एक मैथ सब्जेक्ट है उसके कई सारे टीचर होते हैं. फॉर एग्जांपल एक टीचर है निकिता टीचर, वो मैथ्स लेते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर कई सारे सब्जेक्ट लेते हैं. फॉर एग्जांपल निकिता टीचर मैथ्स और साइंस दोनों लेते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है उसे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं कि कंपनी में एक सिंगल एम्प्लॉय कई सारी डेजिग्नेशन होती है और मल्टीपल एम्प्लॉय एक डेजिग्नेशन के होते हैं. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. सिंपल एग्जाम्पल कि एक मैथ्स सब्जेक्ट है उसके स्कूल में कई सारे टीचर हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि एक टीचर कई सारे सब्जेक्ट लेते होंगे. प्राइमरी में ऐसा होता है कि एक ही टीचर है, वो मैथ्स भी लेता है और साइंस भी लेता है, और मैथ साइंस के एक से ज़्यादा टीचर होते हैं, तो वो रिलेशनशिप उसे बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. ओके, एंड our last topic is field property, which we discuss in our last session. Thank you.